1 minute and I'll request Charu ma'am to introduce Namita ma'am and start this webinar. Good morning, Charu ma'am. Good morning, Namita ma'am. Good morning, dear parents and participants. Wish you a very warm welcome to the morning's webinar. This is a very special webinar being conducted for financial planning for persons with special needs and their families. At Sunrise Learning Foundation, it's always our endeavor to come up with proactive initiatives to deal with all the challenges that face our life, be it the behavior of our children, the education, or any topic that deals with life that lies beyond us now. And one such initiative is to create a series of webinars for planning of finances, because this is a very relevant, very important topic for our lives, not just something that we need to understand, but it's something that we need to implement and inculcate in our daily life so that it becomes a way of life for us. Why can't I hear? True. Okay. Thank you so much, Ruchi ma'am. Charu ma'am, for introducing the topic for today. And let me introduce myself. I'm Namita Rawat. I'm working as a special educator with Sunrise. Namita ma'am, I'm so sorry. Charu ma'am is continuing her introduction. Okay. She's Yeah, going to introduce you and hand over. Okay. Am I audible? Yes. Okay. I'd love to take the opportunity to speak about you, Namita ma'am. So I wanted to introduce Mrs. Namita Rawat. She has a very strong background in the subject. She has an MBA in finance, BCom, and special diploma in special education for autism. She has worked with financial companies such as Kotak Securities GTL Limited, Donny Dake Analytics, Punjab and Maharashtra Cooperative Bank for about an extensive work experience of 7 years. And beyond that, she has a very enriching experience for the needs and challenges of people with special needs as a special educator and as a parent. Over to you, Namita ma'am. We are looking forward to an enriching experience for the day. Thank you, Charu ma'am. Okay, welcome everyone to this webinar of 1 hour or so. Actually, the topic that we are going to cover today is very lengthy, or we can say very having lot of intricacies. But today we will try to create the awareness about the financial securities and what can we do and what are the topics that we have to give attention to going ahead. And financial planning, which is a very personal kind of a thing. And when it comes to our special needs children, the every day we think about what after us. Somewhere down the line in our mind, this question is there: what after us? And when this question arises, and we don't have the proper answer for this question, the uncertainty is a lot. So here I will be telling you few of the topics or few of the main points which we have to look into when we are trying to plan for the financial needs of our special needs children for their whole life. So to start off with, I would like to let you know what are the things that I'm going to present you today. And I would like to keep a balance of English and Hindi so that all the parents, if they have any difficulty also to understand the concepts, they will be able to remember. And because this is a very practical kind of a topic which we have to do, and we have to remember so many points. So even I will be sharing the PPT that I have prepared for this particular seminar. Can you all see my screen? Okay. Yes, ma'am. Yes. So today I will be going through few of the topics like importance of budgeting, then effective financial planning,
then avenues of investment and trust and guardianship. If we talk on each of this topic, it's a really very lengthy topic, but I would like to cover up only a few most important points and few checklists, so that we can remember what exactly we have to do and what exactly the path that we have to walk on. And uh, just a minute. So to start off with, I would like to create a background for this particular topic. The life has always been unpredictable, and this particular pandemic has taught us that we have to be prepared for the contingencies. ये पिछले 1 साल 1.5 साल में इतनी सारी चीज़ें हुई है, और हमें हर बार एज अ स्पेशल नीड पेरेंट हमें हमें हमेशा लगा है कि मैं मेरे बच्चे के लिए या मेरे फ्यूचर के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने फैमिली को सिक्योर करूँ, मैं किस तरीके से उनको एक ऐसा फ्यूचर दे पाऊँ जो उनके लिए सेफ हो, उनके लिए एक जो आज उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको कोई भी तरीके से अफेक्ट ना करे, इसलिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ. एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यू कैन से मेजर एस्पेक्ट ऑफ दिस ऑल. एंड इट्स ऑलवेज बीन अ कंसर्न फॉर द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली. जो भी हमारे अर्निंग मेंबर्स होते हैं, जैसे जनरली फादर्स या मदर्स जो भी वर्किंग होते हैं, और उनके ऊपर हमेशा ये जिम्मेदारी रहती है कि अपनी फैमिली को सिक्योर करके रखना. एंड जो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं एज इन सनराइज लर्निंग ऑल्सो, एवरी डे वी आर स्ट्राइविंग हार्ड so that our children get independent in all the works that they are doing, their education, their ADLs, their vocational training, their employment. We are trying a lot for all these things, but still there are certain things which are very difficult to accept. But yes, we have to go ahead and accept the facts that we have to provide for our children, not only for their current needs but also for their future needs. और ये फ्यूचर नीड्स जो है उनको प्लान करना, उनको समझना और एक पर्टिकुलर कॉर्पस उनके लिए बनाना, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है. और ये प्रोसेस में हमें क्या क्या करना होगा ताकि हम हमारा जो गोल है, हमारा जो फिनेंशियल गोल होगा, हमारा फैमिली के लिए जो गोल होगा, वहां तक हम कैसे पहुंचे. ये जो कैसे पहुंचे हैं उसका जवाब आज मैं कुछ पॉइंट्स से देना चाहूंगी. So to start off with, we will first see importance of budgeting. बजट हम एज अ मिडिल क्लास फैमिलीज हम हमेशा एक बजट लेके चलते हैं अपने फैमिली के लिए. हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम बहुत अच्छे से प्लान आउट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकम सोर्सेस होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं. अगर सैलरीड पर्सन होगा तो उनके पास सिर्फ सैलरी इनकम जो हर महीने आता है वो एक उनका एक रेगुलर इनकम होता है, उसमें से ही एक्सपेंसेस करने होते हैं. तो हमें बजट इसलिए ज़रूरी है. बजटिंग मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आई होप यू कैन ऑल सी द थिंग्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बजट में सबसे पहले हमें करना होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ इनकम. हमारा इनकम सोर्स कहाँ कहाँ से है. जैसे मैंने अभी कहा, सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी अगर हम सैलरीड है तो, और हमारे फ्यूचर में भी कुछ अगर हमें इनकम आने वाला है, जैसे कि हमने कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स अपने लिए प्लान आउट करके रखे हैं, तो हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें इनकम कहाँ से आने वाला है. हमें अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट होने वाली है, कहीं से पैसा हमारे पेरेंट्स मतलब या फिर कहीं से इनहेरिटेंस होने वाला है, तो वो भी अगर हमें पता है तो हम उसे एज ए इनकम इन फ्यूचर हम कंसिडर कर सकते हैं. Apart from that, any income from any investment such as insurance or annuity, या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम्स है जो हमारे बच्चों के लिए है या हमारे लिए है, जहाँ से हमें कुछ रेगुलर इनकम फ्यूचर में भी आने वाला है या फिलहाल भी आ रहा है. या फिर कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई फैमिली मेम्बर जो हमें हमेशा हमारे फाइनेंसेस के लिए हमें हेल्प करने के लिए रेडी होगा. तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें जानना कि हमारे सोर्सेस ऑफ इनकम अभी करंट में क्या है और हमें फ्यूचर में कहाँ कहाँ से और कितना पैसा मिलने की उम्मीद है. ठीक है, जब हमारे पास एक
कितना पैसा है या कितना हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है, ये जहाँ पे हमें पता चल जाएगा, वहाँ पे हमारे जो फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है. So after considering or after identification of the sources of income, the second step will be to determine the financial requirements, current as well as future. तो करंट जो हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो फिलहाल हमारे डेली एक्सपेंसेस है, या फिर हमारे मीडियम टर्म कोई गोल होंगे, जैसे कि हमें कोई कार लेनी है, कोई बड़ा सा फर्नीचर या घर का रिनोवेशन करना है, या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स है जैसे कि हमारे होम लोन्स है. तो हमें ये सब जो करंट और फ्यूचर का जो हमारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसका कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है कि मैं हर महीने कितना पैसा मेरा आउटगोइंग है. इनकमिंग तो हमने देख लिया, अब हमारा आउटगोइंग, हमारे एक्सपेंसेस क्या क्या है, और ना केवल अभी के एक्सपेंसेस, बट जब हम ओल्ड एज में हो जाएंगे तब शायद हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, हमारे और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स बढ़ सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम आवर ओन नीड्स, हमारे बच्चों का जो हम ट्रेडिशनल प्लानिंग जिसे कहते हैं, तो हमारे बच्चों का एजुकेशन, मैरिज, उनके और भी जो भी नीड्स होंगे तो वो भी, और साथ साथ हमारा जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है उसके लाइफ टाइम केयर के लिए कितना खर्चा आ सकता है. तो ये सारे पॉइंट्स को हमें समझना और कैलकुलेट करना, एग्जैक्ट नहीं लेकिन कुछ एजम्पशंस करके हमें एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं उसको हमें कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ मनी. एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ मनी जब मैं कह रही हूँ, कैन यू ऑल सी द प्रेजेंटेशन? यस, ओके. सो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ मनी जब मैं कह रही हूँ तो उसका मतलब है जब हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस ऑफ इनकम है और एवर इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस हमारे पास होने वाले हैं, तो इस टाइम पे हमें जो भी हेवायर एक्सपेंसेस है या इरेशनल एक्सपेंसेस है उनको कंट्रोल करना. जब हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स होगा, जब हमें पता है कि हमारे एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, तो जो भी इरेशनल एक्सपेंसेस है उनको कर्टेल करना, उनको कम करना, और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में डायरेक्ट करना, ये हम कर सकते हैं. जब हमें पता है कि मेरे पास हर मंथ कितना पैसा जमा होने वाला है या कितना पैसा बचने वाला है, तब हम जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं. लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी बाद में कि हमें किस तरीके से सोच हमारी बदलनी पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा प्रोविजन फॉर एनी इमरजेंसी. जैसे मैंने अभी कहा कि ये पैंडेमिक ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है, तो उसमें प्रोविजन फॉर एनी इमरजेंसी, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन हो, मेडिकेशंस हो, या फिर कोई भी इमरजेंसी ऑन लाइफ हो, तो इस टाइम पे हमें क्या करना होगा और हमें कैसे वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा, ये हमें ये पैंडेमिक ने एक झलक दिखा दी है. और अगर हमने इससे कुछ भी सीखा होगा तो हमने शायद ही अपने आप में बदलाव लाया होगा. जो हमने अपनी फैमिली में पिछले 1.5 साल में बहुत सारे चेंजेस किए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. अदरवाइज हम भी बहुत सारी चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे थे. हम सोच रहे थे आज नहीं कल कर लेंगे, बाद में देख लेंगे. लेकिन yes, now it's an eye opener for us, and we are on the track so that we can secure our future. And last but not the least, savings and investment. जब हम बजटिंग बनाते हैं, अपना बजट बनाते हैं, तो हमारे सामने रास्ता खुल जाता है कि किस तरीके से हमें सेविंग्स करने हैं और कहाँ कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट्स करने हैं ताकि हमारा फ्यूचर सेफ हो जाए. तो ये तो सबसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन हुई बजट के बारे में. अब मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहूँगी कि बजट आपको कैसे बनाना है. तो जब आप बजट में शुरुआत में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है कि आपका इनकम, आपको इनकम अपना कहाँ कहाँ से मिल रहा है वो तो देखना है, और आपको उसको नोट डाउन करके रखना है कि मुझे आज पर्टिकुलरली कितना इनकम मिल रहा है और मुझे फ्यूचर में क्या क्या मेरे इनकमिंग है, कहाँ कहाँ से मुझे इनकम मिलने वाला है. उसके बाद में हमें एक्सपेंसेस जो है उसको सेग्रीगेट करना है, क्लासीफाई करना है.
जैसे कि वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं हमारे वांट्स एंड नीड्स। वांट्स एंड नीड्स आर डिफरेंट। वांट्स हमारे है कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें हमारी जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तो उनको हम वांट्स कहते हैं, और नीड्स है हमारे डे टू डे जो भी हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं, हमारे ग्रोसरी, फूड, क्लोथिंग और हमारी जो रेगुलर नीड्स होती हैं उनसे रिलेटेड। अब ये वेरिएबल कैसे, क्योंकि ये चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे और इसलिए ये वेरिएबल है। और जो जैसे मैंने कहा लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है वो भी हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारे फिक्स एक्सपेंसेस, जैसे कि EMI, टैक्स पेमेंट, इंश्योरेंस, एजुकेशन एक्सपेंसेस। तो ये जब हम इनकम और एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो हमें जब बजट शुरू करना है तो हमें ये ट्रैक रखना पड़ेगा फॉर फ्यू मंथ्स इनिशियली कि मेरा एग्जैक्ट एक्सपेंस कहाँ पे हो रहे हैं, मेरे कौन से हेडिंग्स है जिसके नीचे मेरे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, या कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो मुझे कम करने चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रैक आपको पहले फ्यू मंथ्स में पता चल जाएगा अगर आप करोगे तो। आपको बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, मैं उनकी भी आपको लिस्ट दे दूंगी, तो आप उन पे भी जाके, आजकल सारी हम बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो शायद आपके लिए शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, सबके लिए इजी होगा मैं नहीं कह रही, लेकिन एटलीस्ट आप जब ये चीजें सोचना शुरू करोगे तब आपको ये सोचना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। जब सोचोगे तब करोगे, और जब करोगे तो आपको जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा कि मैं कहाँ पे सही जा रहा हूँ, कहाँ पे गलत जा रहा हूँ, और मुझे कहाँ पे करेक्शन की जरूरत है। नेक्स्ट हम कहते हैं जब हमारे पास ये इनकम से एक्सपेंस करके जो बचता है अमाउंट वो हम जनरली सेव करते हैं, राइट। हमारे पास मंथली इनकम जितना भी आता है उसमें से सारे खर्चे होने के बाद जो एंड ऑफ द मंथ जितना भी सेविंग्स के लिए बचता है अमाउंट वही हम सेव करते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा एक सोच आपको देना चाहूंगी कि आप सेविंग्स का अमाउंट पहले कैलकुलेट कीजिए कि मैं कितना सेविंग हर महीने कर सकता हूँ मैक्सिमम, और उसके बाद में जो अमाउंट बचेगा उसमें से एक्सपेंसेस करने। ये मुझे पता है कहना बहुत इजी है, लेकिन मैं ये खुद जब एप्लीकेशन कर रही हूँ चीज़ों का तब मुझे जाके ऐसे लगता है कि इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है। हमारे पास अगर ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा तो हमें बिल्कुल अच्छे से पता चल जाता है कि मैं ज़्यादा सेविंग्स कैसे कर सकता हूँ। और ज़्यादा सेविंग्स इसलिए ज़रूरी है ना केवल अब आज के लिए, लेकिन हमारे फ्यूचर के लिए जो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, किसी को भी नहीं पता है कि हमारे फ्यूचर में क्या लिखा है, तो हमें वी शुड बी प्रिपेयर्ड। और फिनेंशियल इशू कुछ ऐसा इशू होता है जहाँ पे आपको और कोई भी हेल्प करना चाहे भी तो भी पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा। आपको मैक्सिमम ट्राई करना होगा कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ मेरे बच्चे के लिए और मैं अपने आप के लिए, ताकि मैं किसी को भी कल मुझे ना पूछना पड़े कि भाई मुझे तुम सपोर्ट करोगे क्या फिनेंशियली। तो इसलिए मुझे आज से प्रिपेयर करना होगा, और ये हम जितना पोस्टपोन करते जाएंगे उतना हमारे लिए डिफिकल्ट होने वाला है। और मैं यहाँ पे कहीं पर भी आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि द अर्ली द बेटर। तो लास्ट में आपको बजटिंग में करना होता है रिव्यू एंड मॉनिटर। जैसे मैंने कहा कि आपको सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस देखने के बाद आपको रिव्यू करना होता है, मॉनिटर करना होता है कि मैं यहाँ पे कहाँ कैसे चेंजेस ला सकता हूँ। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है बजट फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन। बजट फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन, यहाँ पे एक रिकमेंडेशन में देना चाहूंगी कि आप हमेशा अपने बच्चे का जो स्पेशल नीड चाइल्ड है उसका बजट अलग से बनाइए। बहुत डिफिकल्ट है इमोशनली ये चीज करना कि मेरे बच्चे के ऊपर मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ। एज अ पेरेंट हम मैक्सिमम हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं हम मैक्सिमम अपने बच्चों पे यूज करते हैं। आज की तारीख में हमारा सबसे ज़्यादा जो भी एक्सपेंसेस है उनके थेरेपीज पे, उनके एजुकेशन पे, उनके मेडिकेशंस पे, उनका आज स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, और वो ज़रूरी भी है। उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपको कहाँ कम करना है, उनके ऊपर खर्चा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं।
मैं ये कहूंगी भी नहीं, लेकिन हाँ सेपरेट बजट इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये पता चले कि जो मैं बच्चे पे एक्सपेंसेस कर रहा हूँ वो कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, और वो मुझे अगर कल को मुझे किसी को बताना भी है कि मैं मेरे बच्चे के लिए ये प्लानिंग है, मेरे उसकी ये नीड्स है और मैं इसको इस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा हूँ फिलहाल, तो आपके पास एक रेडी रेकनर रहेगा। और उसके फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि लाइफ स्टेजेस आते हैं हमारे बच्चों में, जैसे कि अभी माइनर हैं तो छोटे बच्चों में जो हम अभी फिलहाल कर रहे हैं जैसे थेरेपीज है या फिर उनका स्कूलिंग एजुकेशन है, वो कल को जाके चेंज होगा, और वो चेंज होगा उनके वोकेशनल ट्रेनिंग पे, उनके एम्प्लॉयमेंट पे, उनके और जो फिजिकल नीड्स उनकी बढ़ेगी। कुछ बच्चों को कभी कभी कुछ इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि आई केयर के लिए होगा या फिर फिजिकल केयर के लिए होगा, तो वो भी हमें कंसिडर करना बहुत जरूरी है ताकि उसके लिए भी हम प्रोविजन कर पाए। तो ये हो गया माइनर और एडल्ट का। उसके बाद में तो और भी लाइफ स्टेजेस है, जैसे कि एडल्ट लिविंग विद अस एंड एडल्ट लिविंग इन रेसिडेंशियल केयर यूनिट्स। तो रेसिडेंशियल केयर यूनिट्स में भी अगर हमें रखना है तो आज की तारीख में इतना कॉस्टली है वो रखना, तो समझिए और 20 साल के बाद क्या होने वाला है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस, जो बढ़ते जाने वाले हैं खर्चे, उनके लिए प्रिपरेशन हमें ही करना है। वो स्ट्रॉन्ग बेस हमें ही बनाना है, और वो बेस हमें आज से बनाना है। apart from the life stages, we have to consider the contingencies also. अगर खुदा न खास्ता कल को हमें कुछ हो गया तो उस टाइम पे हमें किस तरीके से हमारे बच्चे के लिए प्लानिंग करके रखना है, ताकि जो भी सर्वाइवर्स होंगे उनके लिए ये समझना, ये उसको फॉलो करना बहुत इजी होगा। हमारे बाद में भी हम एक कहते हैं ना कि लास्ट तक हम यही सोचते रहेंगे कि मेरे बच्चे के लिए मैं क्या ऐसे सेफ फ्यूचर छोड़ूं कि मेरे बाद भी उसे कोई देखने वाला होगा, और जिस तरीके से केयर मैं कर रहा हूँ वैसे ही कोई और भी करेगा। तो ये कंटिजेंसीज के लिए भी हमें प्रिपेयर रहने के लिए बजट फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And obviously last point is lifetime care cost can be estimated if we calculate it separately. तो जैसे मैंने कहा कि रेसिडेंशियल केयर है या फिर आगे के जो मेडिकल एक्सपेंसेस या कोई भी कंटिजेंसीज होगी उसके लिए कितना पैसा लग सकता है, तो ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं। I hope I am not going very fast. All of you are able to understand what I am trying to tell you. Okay, next I'll be sharing with you these online calculators. Obviously मैं आपके पास जब ये PPT भेजूंगी तो आपको ये लिंक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे और भी रहते हैं, लेकिन कुछ जो मुझे लगे कि शायद बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है तो वो मैंने देने की कोशिश की है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो हमारे बच्चे के लिए मैंने जो कहा कि सेपरेट बजट बनाना है, तो उसका कोई रेडी रेकनर अवेलेबल नहीं है बाहर। कुछ सिर्फ ये जो प्लान्स specialneeds.com है उसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए, हाईलाइट किए हुए हैं, जहाँ पे आप स्पेशल चाइल्ड के जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको आप समझ सकते हो और आप फॉलो कर सकते हो। Okay, so after the budgeting, the next point that I would like to highlight is about effective financial planning. तो इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगा और कैसे होगा, तो उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट उसमें आता है वो है अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन वी प्लान फॉर आवर स्पेशल नीड चाइल्ड। तो जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्लानिंग होता है उसमें कुछ गोल्स होते हैं, और हमेशा जब फाइनेंशियल गोल्स हम बनाते हैं तभी उनको फॉलो थ्रू करना बहुत, जैसे हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि हम जब उनके लिए फिजिकल गोल्स बनाएंगे, उनके लिए हम एकेडमिक गोल बनाएंगे तो हम उनको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, उनको हम वो गोल्स को रीच कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई आईपी नहीं है ना, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान जो हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, अगर वो आईपी ना हो
तो हमारे लिए बच्चों का एक जो लर्निंग ग्राफ है, उनका डेवलपमेंट है, वो समझना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही है ये इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसमें हमें गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करना होता है। सबसे पहले हम फाइनेंशियल प्लानिंग ट्रेडिशनल वे में क्या होता है वो देखेंगे। उसमें 3 टाइप के गोल्स होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल्स फॉर आवर रेगुलर एक्सपेंसेस एज वेल एज फॉर आवर लग्जरीज लाइक कार और हाउस मॉडिफिकेशंस। मीडियम टर्म एक्सपेंसेस, मीडियम टर्म गोल्स होंगे जैसे कि 20 इयर्स ऑफ होम लोन। और लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे जैसे हमारे बच्चों का हायर एजुकेशन, मैरिज और हमारा रिटायरमेंट। तो जनरली ये लाइन ऑफ थिंकिंग होता है जब फिनेंशियल प्लानिंग किया जाता है। लेकिन जब हम हमारे स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए प्लानिंग करते हैं तो कहा जाता है कि इट इज प्लानिंग फॉर 2 जनरेशंस। मतलब आवर चिल्ड्रन आर गोइंग टू आउटलिव अस, हमारे बाद में भी वो रहने वाले हैं और हमें उनके लिए पूरी तरीके से प्रोविजन करके जाना है। तो जो जो गोल्स हम चाइल्ड विद स्पेशल नीड के लिए करेंगे वो होंगे इमीडिएट गोल्स सच एज देयर डे टू डे एक्सपेंसेस, थेरेपीज, एजुकेशन, मेडिकेशन और एनी इक्विपमेंट और पर्टिकुलर फर्नीचर इफ दे नीड। उसके बाद में मीडियम टर्म गोल्स होंगे जैसे कि उनके वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। हमें अगर उनके लिए कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना है तो अगर हमें फिनांसेस करने हैं, या फिर हमारे बच्चों के लिए हमें कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, उनको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग देना है, कहीं पे उनको फिजिकल जो भी उनके नीड्स होंगे तो उसको उसके लिए प्रिपरेशन करना है। तो ये हमारे मीडियम टर्म गोल्स होंगे जो उनके एडल्टहुड के लिए हम कह रहे हैं। उसके बाद में होंगे लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि उनके रेसिडेंशियल केयर, या फिर अगर वो हमारे साथ रहने वाले हैं बाद में भी या फिर हमारे अपने घर में रहने वाले हैं तो केयर टेकर अगर लगेगा तो। और जब हम उनके लिए गार्डियन और ट्रस्ट अपॉइंट करते हैं तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड लाइफ लॉन्ग केयर एक्सपेंसेस। तो जो बाद में भी, मतलब जब हमारे बच्चे ओल्ड एज में जाएंगे तब उनके लिए जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, या फिर उनके जो ऑल द टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, जब इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व है। मतलब हमारे बच्चे अभी शायद माइनर होंगे, उसके बाद में वो एडल्ट होंगे और आउटलिव करेंगे, जब हम नहीं होंगे उसके बाद भी वो रहेंगे। तो ये बहुत लंबा समय है, और ये लंबा समय कम से कम आप समझ सकते हो और ज्यादा, मतलब 60 to 70 ईयर्स का है आगे जाके। तो ये जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए हमें आगे 50 साल के बाद के लिए भी अगर हमें प्रिपेयर्ड रहना है तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दीज गोल्स, जो ट्रेडिशनल गोल्स होंगे हमारे अगर न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं तो उनके लिए भी हमें कैसे प्लानिंग करना है ना। हमारा सिर्फ ऐसे नहीं है ना कि हम सिर्फ स्पेशल नीड बच्चों के लिए करेंगे, हमारे न्यूरोटिपिकल बच्चों के लिए भी हमें प्रोविजंस करने होंगे, हमारे फ्यूचर लाइफ के लिए प्रोविजन करने होंगे। That's why the financial planning for CWSN is planning for 2 generations, for our generation and for their generation. नेक्स्ट चीज़ है जो हम हमेशा सुनते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी। इन्फ्लेशन होता है हर साल जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनमें बढ़ोतरी होती जाती है, बढ़ते जाते हैं, क्योंकि बाहर जो इकोनॉमिकल चीज़ें, इकोनॉमी की चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं। जैसे अभी हमने देखा कि पिछले 1 साल में पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, फिर उसका इम्पैक्ट आता है हमारे ग्रोसरीज पे, हमारे लिविंग स्टाइल, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है उस पे। और ये इन्फ्लेशन के वजह से क्या होता है कि आपका जो अभी का जो पैसा है अगर वो वैसे ही रहेगा, यानी मैंने अगर 1 लाख रुपीज आज मैंने अपने लॉकर में रख दिए तो उसकी वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स बहुत कम होने वाली है। To give you an example of exactly how much the value of the money erodes, I can tell you, जो 25,000 अगर मेरा मंथली एक्सपेंस अभी है 2021 में, तो यही सेम लाइफस्टाइल और सेम खर्चे अगर मेरे सेम खर्चे, मतलब सेम ग्रोसरी, सेम क्लोथिंग एंड सेम मेडिकेशंस, एवरीथिंग इज सेम। अगर ये सेम एक्सपेंसेस मेरे 2041 में, मतलब आज से 20 साल बाद जब मैं रिटायर्ड होंगी,
उस टाइम पे मैंने कैलकुलेट किए तो 25,000 के बदले मुझे लगेंगे 1,08,381, मतलब अराउंड 4 टाइम्स हायर देन टुडेज एक्सपेंसेस। मतलब क्या हुआ, आपके पास जो पैसे हैं उसकी वैल्यू कम होती जा रही है और आपको चीजें उतनी ही मिल रही है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये जो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं किया और कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स किए जहां पे इन्फ्लेशन रेट से कम आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर अभी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 6% 7% अगर होगा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, और आपके इन्वेस्टमेंट्स जो कि अभी चल रहा है एफडी पे इंटरेस्ट चल रहा है अगर 5.5%, तो ऑब्वियसली अगर इन्फ्लेशन 6% है और आपको 5.5% एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके बाद में उसके बाद में हम समझ सकते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू कम होने वाला है। ठीक है, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट हमने फ्यूचर में अगर यूज करना चाहा तो हमारे पास उसका जो वैल्यू होगा वो कम होगा। इसलिए आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे जहां पे इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं। आपको रेट ऑफ रिटर्न्स मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको हर साल जो भी उस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है वो ज्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट जो इम्पैक्टफुल पॉइंट है वो है टैक्सेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन आर द मेजर एविल्स वी कैन से। ये दो सबसे बड़े पॉइंट्स हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोचने पे मजबूर करते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए। आप सबको टीडीएस के बारे में शायद पता ही होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो और बैंक में आप पैसे रखते हो तो आपके इंटरेस्ट पे सीधे टीडीएस कट जाता है और फिर जो रेसिडुअल इनकम होता है वो आपको मिलता है। तो ये जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन है, मैंने एक यहाँ पे चार्ट दिया है एज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ टैक्सेस मिल जाएंगे कि कितना आपके इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लग रहा है। तो ये इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन भी हमें कंसिडर करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे भी देना चाहूंगी। जैसे कि आप कोई रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान आप लेते हो, जैसे कोई इंश्योरेंस, समझ लीजिए इंश्योरेंस प्लान है आपके पास, या फिर आपके पास पेंशन आ रही है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो और आपके पास पर्टिकुलर पेंशन आ रही है, तो आगे जाके है ना आफ्टर योर रिटायरमेंट अगर वो पेंशन पे टैक्स लगता है तो ऑब्वियसली आपके पास जो फिक्स इनकम, जो चेंज नहीं होने वाला इनकम आने वाला है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में जनरली हमारे पास ऐसा कोई एवेन्यू नहीं रहता कि हमें इनकम और मिलता रहे, है ना। तो उस टाइम पे अगर उस पर टैक्स लगेगा तो ऑब्वियसली आपके जो इनकम है वो कम होता जाएगा, और जितना इनकम कम होगा उतना आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी कम होती जाएगी। तो इसलिए आपको ये टैक्सेशन का जो इम्पैक्ट है उसको आपको समझना पड़ेगा और उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा व्हाइल डूइंग एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। लिक्विडिटी एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसको आप आपकी जरूरत के अनुसार क्या आपको मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपने सोचा कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो 15 ईयर का लॉक इन पीरियड है, ठीक है, और आपको आज जरूरत पड़ेगी, आपने 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट कर लिया और आपको जरूरत पड़ेगी आज, मतलब कोई जरूरत की चीज के लिए आपको कैश चाहिए और आपने वो इन्वेस्टमेंट की तरफ देखा, तो अगर वो लॉक इन पीरियड में है उसमें से आप पैसे ना निकाल पाओगे तो क्या होता है, उसमें लिक्विडिटी नहीं है, आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप वहां से फंड्स नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त आपको सोचना पड़ेगा कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप एक कहते हैं एक बकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करोगे कि जहां से कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होंगे जहां से आपको तुरंत पैसे मिल पाएंगे, और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होंगे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड रहेंगे जिसको आप बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाओगे और उस पर वो आपके सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको और भी याद रखना है, जब हमारे पास जब चाइल्ड में स्पेशल केयर है तो उस टाइम पे हमें
मतलब जो मैंने कहा कि फ्यूचर अनसर्टेन है, उस टाइम पे भी ये लिक्विडिटी बहुत मायने रखती है। अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट किया है जो अभी तक उसका कोई मतलब वो पूरी पूरी तरीके से बने नहीं हैं, और ना आप उसको सेल कर पा रहे हो, और ना उससे आपको कोई इनकम आ पा रहा है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स अगर आप अपने बच्चे के नाम पे छोड़ रहे हो, तो वो लिक्विडिटी उसमें कहाँ से आएगी? जो सर्वाइवर्स होंगे, क्या वो उसको लिक्विडेट कर पाएंगे? क्या उसको वो सेल ऑफ कर पाएंगे? वहां से क्या पैसा मिल पाएगा? तो ये पॉइंट को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट सच एज रियल एस्टेट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड और पीपीएफ और गोल्ड इज अ चैलेंज इवन फॉर अ लेमन लाइक अस। हमारे लिए भी ये बहुत मुश्किल होता है। तो जो पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है वो हमारे बच्चे तो उनको समझना, उनके लिए करना बहुत मुश्किल है। और जो हम गार्डियन या फिर उसके लिए कोई अगर ट्रस्ट भी रखते हैं, तो उनके पास भी ये सब अथॉरिटी रहना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि लिक्विडिटी आपको जो है वो रखनी होगी हमेशा, तभी आप जाके वो फंड्स को यूज कर पाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जब इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, तो आपको कौन सी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? तो जो हमने अभी बात की कि आपको फिनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी, तो बिल्कुल गोल बेस्ड होनी चाहिए आपके पास। आपको समझ होनी चाहिए कि आप मतलब आपको समझना पड़ेगा कि मेरे क्या क्या शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स मेरे खुद के लिए, मेरे फैमिली के लिए और मेरे स्पेशल नीड चाइल्ड के लिए है। तो वो हमारे गोल्स को समझना होगा, उसको जॉट डाउन करना होगा, और अकॉर्डिंगली हमें असेट एलोकेशन, मतलब आपके पास जितने भी असेट्स हैं उसको आपको ये फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार ही एलोकेट करना होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबने आपने सुना होगा कि डू नॉट ले ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी कि सारे इन्वेस्टमेंट्स एक ही एवेन्यू में नहीं करने हैं। आपको अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे, ताकि जो आपकी रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाए, आपकी रिस्क डिवाइड हो जाए, और आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो भी मिलता रहे। और कोई भी तरीके का अगर कोई इन्वेस्टमेंट, कोई खुदा न खास्ता कोई इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है, तो आपके पैसे बिल्कुल भी इरोड ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, आपके पास कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट रहेगा, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा। तो आपको सारे इन्वेस्टमेंट्स जो करने हैं वो एक जगह पे नहीं करने, अलग अलग जगह पे करने। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टार्ट अर्ली। आज से शुरुआत करनी है। हमें फाइनेंशियल डिसीजंस कभी भी पोस्टपोन नहीं करने हैं। कल करूंगा, नेक्स्ट सैलरी इंक्रीमेंट होगी तब करेंगे, जब हमारे लोन कम हो जाएंगे तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। नहीं, हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है हमारे आज के सेविंग्स पे, आज के इन्वेस्टमेंट पे, और हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करना है। नेक्स्ट है आपको डाइवर्सिफाई करना है। जैसे मैंने कहा कि डू नॉट ले ऑल द एग्स इन वन बास्केट। आपको आपका पोर्टफोलियो जो होगा, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो आपको डाइवर्सिफाई करने हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप लोगे, देयर इज नथिंग गुड और बैड अबाउट इट, लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट लोगे उसमें स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर टाइम। आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना है, ठीक है? ऐसे नहीं कि आप 2-3 साल में वो इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल रहे हो, फिर कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर वापस से निकाल रहे हो। उससे क्या होता है, आपको दो एस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि एक तो आप जब पैसे निकालते हो तो बहुत बार कुछ उस पर पेनल्टी लग जाती है, या फिर उस पर आपको टैक्स लग जाता है, फिर आप वो कहीं और इन्वेस्ट करने जाते हो वही सेम पैसे, तो ऑब्वियसली आपका जो वैल्यू होता है वो कम होता जाता है। तो स्टेइंग इन्वेस्टेड इन गुड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स इज, अगर मतलब शेयर्स में करना है या फिर म्यूचुअल फंड में करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है, ठीक है? आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट, अगर गोल्ड में भी करते हो, प्रॉपर्टी में भी करते हो, इफ यू स्टे इन्वेस्टेड देन इट गिव्स यू गुड रिटर्न। लेकिन जंपिंग करना एक इन्वेस्टमेंट से दूसरी इन्वेस्टमेंट पे, इट्स नॉट रिकमेंडेबल एट ऑल। Next point I would like to bring out is various investment options that have. जैसे अभी तक हमने देखा
कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के जो हमारे पास हमारे सामने हैं, और हम शायद ही ये सारी चीज़ों में नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट्स। जैसे मैंने कहा कि आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है, आपके इन्वेस्टमेंट्स को आपको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। तो कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे लिए आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है वो है इंश्योरेंस। और मैं इंश्योरेंस पे थोड़ी लंबी बात करूंगी, मैं एलेबरेट करूंगी, लेकिन जो बाकी के इन्वेस्टमेंट्स है उसके लिए भी मैं आपको पॉइंट्स कुछ चेकलिस्ट की तरह बताऊंगी कि क्या क्या करना होगा। तो इंश्योरेंस इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंश्योरेंस ऑफ बोथ द पेरेंट्स and our children as well. Insurance of the whole family is very important। और आज की तारीख में हमने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स को मतलब कुछ केसेस हमने ऐसे सुने हैं, उस टाइम पे ये इंश्योरेंस ने उनको सहारा दे दिया है। दूसरी जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है वो है पीपीएफ, एनपीएस, एफडी एंड स्मॉल सेविंग स्कीम्स। ये सारे जो चार मैंने बताए वो है सेफ एंड फिक्स रिटर्न्स वाले इन्वेस्टमेंट। मतलब इनमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो, जैसे पीपीएफ है, नेशनल पेंशन स्कीम है, एफडीज है, या स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑफ पोस्ट है, पोस्ट में जो स्कीम्स होते हैं, यहाँ पे जब आप पैसे रखते हो तो आपके जो पैसे होते हैं वो सेफ होते हैं। वो आपको एक पर्टिकुलर फिक्स रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट पे लिखा होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो आपको पता है कि मुझे एट द एंड ऑफ 5 years और 15 years मुझे इतनी अमाउंट मिलने वाली है। तो ये हमारे लिए सेफ और फिक्स रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट्स हैं। और जो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो वेरिएबल है, हाई रिस्क है, लेकिन हाई रिटर्न भी देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड एंड प्रॉपर्टी। तो आप सब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ज़रूर जानते होंगे। आपने ज़रूर हम आज टेक्नोलॉजी के इसमें रह रहे हैं, तो हमें रोज़ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हर एक चीज़ में हमें पता चलता है कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अभी गोल्ड का रेट ये चल रहा है, अभी शेयर मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, अभी म्यूचुअल फंड में कौन से म्यूचुअल फंड की बार बार एडवर्टाइजमेंट्स आ रही है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन ये सारे एवेन्यूज है वो हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले हैं और वेरिएबल है। मतलब यहाँ पे कोई फिक्स रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला, हायर मिलेगा। शायद आज की तारीख में जो आपको सबसे ज्यादा पीपीएफ में अगर मिल रहा है, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे ज्यादा अगर फिक्स इनकम मिल रहा है, तो इससे ज्यादा ही मिलेगा म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में या गोल्ड में या प्रॉपर्टी में। लेकिन कंफर्म नहीं है कि आपको वो मिलेगा ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रॉपर्टी है वो तो इमूवेबल है और उसमें लिक्विडिटी एस्पेक्ट भी बहुत कम है। बाकी सारी चीजें जो है म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स है या गोल्ड है, इसमें लिक्विडिटी जरूर रहती है, आप जब मर्जी तब आप उसमें से फंड्स निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी हाई रहती है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं इंश्योरेंस पे बात करना चाहूंगी। इंश्योरेंस पे बात इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि जो अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ है उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। और 3 टाइप्स का इंश्योरेंस हमारे पास होना ही चाहिए। जैसे कि हमारे पास अगर कार है, तो जिनके पास भी कार होगी उनको पता है कि बिफोर टेकिंग अ कार, मतलब बाइंग अ कार, आपको कार का इंश्योरेंस पेमेंट करना पड़ता है, तभी आप कार खरीद सकते हो। अगर आपको रोड पे लेके जानी है कार और आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो गई है तो अलाउड नहीं होता है। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर्ड है तो आपको कार आप अपने गैराज से बाहर निकाल भी नहीं सकते, आपके पार्किंग से निकाल नहीं सकते। तो वैसे ही चीज है कि हमारे लिए इंश्योरेंस होना। और जहां तक इंडिया का सवाल है, अच्छा खासा स्टैटिस्टिक्स कहता है कि इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, मतलब इंश्योरेंस लेने वाले जो लोग हैं वो अंडर इंश्योर्ड है, या फिर मैक्सिमम पॉपुलेशन है जिनका कोई इंश्योरेंस नहीं रहता है। ओके, तो इंश्योरेंस के लिए आपको 3 चीजें हैं जो करनी पड़ेगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस इज फॉर आवरसेल्फ, हमारे लिए एज अ पेरेंट एक डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी होना चाहिए। जब हम इंश्योरेंस की बात, जब लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 2 टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जब हम लेने जाते हैं या फिर कोई एजेंट हमारे पास आते हैं, तो जनरली वो हमारे लिए हमारे बच्चों को देख के, या नॉट ओनली स्पेशल नीड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए वो जनरली ऐसे कैश वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स बताते हैं कि आप अभी इतना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 20 साल के बाद में, जब आपका बच्चा बड़ा होगा, जब शादी होगी या फिर उनका एजुकेशन के लिए आपको इतनी अमाउंट मिलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें इंश्योरेंस 2 lakhs का था। ठीक है, 2 lakhs मतलब इफ समथिंग हैपेंस टू मी, माय फैमिली विल गेट 2 lakhs रुपीज, एंड फॉर दैट आई यूज्ड टू पे 15,000 रुपीज पर एनम। हर साल में 15,000 रुपए उसका मैं प्रीमियम पेमेंट कर रही थी, जो 15 साल के लिए था। मतलब 15,000 into 15 years, दैट इज 2,25,000 रुपीज जब मैं प्रीमियम पेमेंट करूंगी 15 साल, उसके बाद में जाके मुझे कुछ उस पे बोनस और इंश्योर्ड अमाउंट मिलके मुझे 4 लाख के अराउंड वापस मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा। अब आप मुझे बताइए कि वो 2 लाख का इंश्योरेंस अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो सिर्फ 2 लाख ही मिलेंगे मेरी फैमिली को, और उसके लिए मैंने हर साल 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब ऐसे वाला जो प्रोडक्ट होगा, क्या ये हमारे लिए सही है या नहीं? अब गुड और बैड प्रोडक्ट ये तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, जहाँ पे हमारे बच्चों का सवाल आता है, जब हमारी फैमिली का सवाल आता है, तो मैं रिकमेंड करूंगी जरूर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, विच इज अ प्योर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी लाइफ का इंश्योरेंस मिलता है। मतलब समथिंग गोज रॉन्ग विथ यू, योर फैमिली विल बी सिक्योर्ड विद ह्यूज अमाउंट। जैसे मैंने अभी कहा, जब मैं 15,000 रुपीज पर एनम भरती थी तो मुझे 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता था। मेरे लाइफ का कवर सिर्फ 2 लाख का था। लेकिन अगर वही इंश्योरेंस मैं अगर टर्म इंश्योरेंस लेती तो मुझे मिनिमम 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिलता है। 15,000 रुपीज अगर मैं तब इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करती, टर्म इंश्योरेंस में, तो मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर था। अब आप कहोगे कि टर्म इंश्योरेंस में तो प्रीमियम वेस्ट हो जाता है, आफ्टर एट द एंड ऑफ टर्म आपको कुछ भी नहीं मिलता, तो फायदा क्या? तो दोनों के फायदे और जो प्रोज एंड कॉन्स वी कैन से, मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले जो इंश्योरेंस कवर है वो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका इंश्योरेंस कवर कितना होना चाहिए। जनरली जब इंश्योरेंस के बारे में बताया जाता है तो बोलते हैं कि आप 20 टाइम्स ऑफ योर करंट सैलरी है उतना इंश्योरेंस कवर लीजिए, 40 टाइम्स कीजिए। लेकिन जैसे हमने अभी बजट किया, हमने अपना स्पेशल नीड बजट अलग से किया, तो हमें एक अंदाजा आ जाता है, एस्टिमेट हम कर सकते हैं कि मुझे प्रेजेंट रिक्वायरमेंट मेरे कितने हैं और मेरे फ्यूचर रिक्वायरमेंट कितने होने वाले हैं। तो अगर मैं आज रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी फैमिली के लिए मुझे एक पर्टिकुलर कॉर्पस, एक पर्टिकुलर फंड अगर चाहिए तो कितना होना चाहिए। तो जब आप इंश्योरेंस करोगे तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि टर्म इंश्योरेंस बोथ द पेरेंट्स मस्ट, it's better to start early and investment in other options rather than insurance to build a corpus for future is important। मतलब इंश्योरेंस को आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह ना देख के सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की तरह देखोगे तो आपका जो बचा हुआ प्रीमियम जो आपके पास रहेगा वो आप और अदर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उसमें आप डाल सकते हो। तो इसलिए आपको इन दोनों में से डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। I think time will not allow me to go in details about the investments in detail, तो मतलब इंश्योरेंस इन डिटेल। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी अभी कि टर्म इंश्योरेंस के फायदे क्या है और आपको टर्म इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए। इट लास्ट फॉर अ पॉलिसी होल्डर्स लाइफ टाइम। आजकल लंबे टाइम के लिए भी आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, यानी आपका होल लाइफ भी आप इंश्योर कर सकते हो टर्म इंश्योरेंस से। आपको प्रीमियम पे करते रहना पड़ेगा ताकि आपका इंश्योरेंस कवर बना रहे और आपको हाई इंश्योरेंस कवर मिल सकता है, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। एंड जो भी कैश रिजर्व अगर कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को कैश रिजर्व को मतलब एक्सेस मिल जाता है। ऑब्वियसली एक ही डिसएडवांटेज इसका है कि इसमें कैश वैल्यू कुछ नहीं मिलता। जो प्रीमियम आप पे करते हो उसमें से कुछ भी रिफंड नहीं मिलता। आजकल कुछ पॉलिसीज आए हैं कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के, एज आई एम नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आई विल नॉट टेक द कंपनीज नेम्स, बट यू कैन फाइंड आउट ऑन गूगल ऑब्वियसली।
there are few companies which are giving you the term insurance premium return after the term. अगर 20 years के लिए लिया है तो 20 years के बाद में आपको जो प्रीमियम का वैल्यू होता है वो आपको वापस मिल जाता है। लेकिन ऐसे वाले इंश्योरेंसेस में प्रीमियम का जो कॉस्ट होता है, यानी हर महीने आप या हर साल आप जो कॉस्ट पेमेंट करो, प्रीमियम पेमेंट करोगे, वो थोड़ा हायर लेवल का होता है। मतलब अगर आप 22,000 रुपए इन जनरल करते हो तो उसका शायद 27,000 रुपए होगा। आपको कवर 1 करोड़ का ही मिलेगा, लेकिन उसमें कॉस्ट का डिफरेंस अलग होता है, तो आप वो कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास जनरली होते हैं वो पीपीएफ या एफडीज। तो पीपीएफ में भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 5th ऑफ एवरी मंथ उससे पहले कर दीजिए। आप कोई भी कितना भी अगर मंथली इंस्टॉलमेंट भी भर रहे हो तो आप 5 तारीख से पहले कर दीजिए, उस पर मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलता है। और 1,50,000 ये मैक्सिमम लिमिट है एटीसी के अंडर। तो आप लमसम अमाउंट भी पे कर सकते हो। 1 अप्रैल को ही अगर आपने 1.5 लाख पेमेंट कर दिया तो अभी जो 7.1% इंटरेस्ट इस पे मिल रहा है तो वो आपको पूरे अमाउंट पे मिल जाता है पूरे साल के लिए। अगर वो नहीं कर पाते तो एक पर्टिकुलर अमाउंट एवरी मंथ कम व्हाट में यू विल इन्वेस्ट इन पीपीएफ, बिकॉज पीपीएफ इज द मोस्ट सिक्योर्ड एंड इट्स फॉर ऑल द इंडियंस, इट्स अवेलेबल। तो आप कर सकते हो इसमें इन्वेस्टमेंट, जो 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। और यहाँ पे मैं और एक रिकमेंड करना चाहूंगी, अपने बच्चों का पीपीएफ अकाउंट जरूर ओपन कीजिए। एक टैक्स में एक प्रोविजन है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रही हूँ, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छी प्रोविजन करके रखी है क्लबिंग ऑफ इनकम में, जहां पर डिसेबल चाइल्ड का या डिसेबल डिपेंडेंट का अगर कोई इनकम है तो वो पेरेंट के साथ क्लब नहीं किया जाता, पेरेंट के साथ क्लब नहीं किया जाता। आप अलग से उनका आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, उनकी फाइल अलग से बना के आप पूरी तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हो। आप अगर पीपीएफ अकाउंट में आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जनरली ऐसे होता है, अगर न्यूरोटिपिकल्स है तो उनमें कि आपका और बच्चे का मिलके 1.5 लाख रुपीज का मैक्सिमम लिमिट होता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे का अलग से अकाउंट ओपन करते हो तो ये लिमिट्स डिफरेंट हो जाते हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हो वो आप जरूर कर सकते हो, और टैक्स फाइल करके आप बच्चे के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉर्पस जमा कर सकते हो विदाउट पेइंग हायर टैक्स स्लैब, है ना। नेक्स्ट है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जहाँ पे आपको 8 to 10% रिटर्न अभी तक उन्होंने दिए हुए हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हो। और 50,000 का आपको अलग से टैक्स स्लैब में भी मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। तो एनपीएस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। देन देयर आर अदर पोस्टल सेविंग स्कीम्स which are giving better returns than FD in bank, like FDs in post office or NSCs और सुकन्या समृद्धि योजना which is for girls। 10 साल की बच्चियों के लिए, 10 साल तक की बच्चों लड़कियों के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना है जो 7.6% इंटरेस्ट देती है। तो ऐसे वाले एवेन्यूज आप इन्वेस्ट कर सकते हो सेफ रिटर्न के लिए। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, इंश्योरेंस एक बड़ा अमाउंट का आप लेके रखोगे तो आपके फैमिली का आज और कल दोनों सिक्योर हो जाएगा। और जब आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स भी हैं या आप शेयर्स में करते हो, प्रॉपर्टी में करते हो, तो ये सारे भी इन्वेस्टमेंट्स आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। एक चेकलिस्ट है जो मैंने बनाई है, तो प्लीज गो थ्रू दैट। लाइक financial planning is required to build a corpus large enough to provide for the future requirements of family, and risk and return has to be considered while making investments. Liquidity important, adequate insurance policy very important। उसके बाद में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है, जनरली क्या होता है, जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो ही सारे डिसीजंस लेता है हमारे इंडियन फैमिलीज में जनरली।
और वही उनको ही पता होता है कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट्स दैट यू हैव, मेक अ नोट ऑफ हाउ टू विड्रॉ दीज इन्वेस्टमेंट्स, क्या क्या उसके लिए आपको करना पड़ेगा, मैच्योरिटी डेट्स क्या है, आजकल डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हो आप। तो ये सब चीजें रखना। उसके बाद में आप जो ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो तो पासवर्ड्स और लॉगिन आईडीज हैंडी रखना अपने पार्टनर के लिए और जो अदर स्टेक होल्डर्स है उनके लिए। कल को ऐसा ना हो कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट किए है वो किसी को पता ही नहीं है और द मनी इज कम्प्लीटली वेस्टेड। सब कुछ आपके, देखो सिक्रेसी होती होगी शायद फैमिलीज में, लेकिन आज के तारीख में जब हम इतनी अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हैं तब ये सब चीजों के बारे में अपने फैमिली में ओपनली डिस्कस करना ये बहुत जरूरी, ये एक स्टेप अहेड है हमारे हमारे फैमिली को का एक आप कह सकते हो डेवलपमेंट स्टेज भी है। आपको ये सब चीजें बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद में नॉमिनेशंस होने अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आपके जो पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर्स होते हैं या फिर आपका कोई चेंज इन एड्रेस, नेम चेंज कुछ भी होगा, आप अपने बैंक्स में आपके इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जहाँ पे भी है उसमें सब पे ये अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद में एक विल, राइटिंग ऑफ अ विल and creating trust, obtaining legal guardianship and providing for our old age, all are very important points. So when जब आप ये फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू करोगे तो प्लीज एक बार ये चेकलिस्ट को जरूर देखिएगा, जरूर इसको आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास करने के लिए इतनी सारी चीजें, हमारे बच्चों के लिए हम इतनी सारी चीजें रोज करते रहते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनके लिए हमारे पास वक्त नहीं रहता। ये एज अ पेरेंट मैं भी जानती हूँ, जब मुझे बैंक का कोई काम होता है तो मुझे अलग से टाइम जो निकालना पड़ता है वो मेरे पास नहीं होता। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन फैसिलिटीज का आप यूज कर सको, सिक्योरिटी आप रख सको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की भी, और आपके फैमिली के लिए जो फिनेंशियल सीक्रेसी ना रखते हुए आप फैमिली में ये सारी चीजें अपने स्पाउस को या फिर जो भी आपकी ट्रस्टवर्दी पीपल हो गए उसको आप बताना जरूरी है। लास्ट जो मैं यहाँ पे बताना चाहती थी, ये भी हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का ही एक हिस्सा हम समझ सकते हैं, या फिर हम समझ सकते हैं कि ये हमें इसके बारे में भी आज से ही सोचना बहुत जरूरी है, और वो है ट्रस्ट एंड गार्डियनशिप। बहुत बार आपको लगता होगा कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरे बाद किस तरीके से प्लानिंग करना होगा, कौन करेगा। आज की तारीख में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोफेशनल फर्म्स हैं, वो भी इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। अगर आपके पास कोई फैमिली सपोर्ट ना हो तो आप ऐसे प्रोफेशनल्स के पास भी जा सकते हो। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आपको इस बारे में सोचना। एज अ पेरेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल डिसीजन होता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, आगे मैं मेरे बच्चे के लिए किस तरीके से उसका मतलब सिक्योर करूँ फ्यूचर। बहुत सारे लीगल इश्यूज होंगे, मैं इनको एड्रेस कैसे करूँगा, मुझे कौन हेल्प करेगा, कौन दौड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर नॉलेज हो, अगर हमारे पास चीज़ें क्या क्या करनी है और कैसे करनी है उसका एक कोई पर्टिकुलर रेडी रेकनर अवेलेबल हो, तो हम खुद भी ये चीज़ें कर सकते। ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन हम कर सकते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगी कि स्पेशल नीड ट्रस्ट क्या होता है। तो स्पेशल नीड ट्रस्ट ये एक अरेंजमेंट है जहाँ से आप ट्रस्ट बना के अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उसको आप किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से आपको रखना है। जैसे मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, a trust is a specific separate legal entity and no other individual including creditors can have a say on the trust managed legacy। मतलब आप अगर कोई ट्रस्ट फॉर्म करते हो या फिर आप कोई प्रोफेशनल को आप ट्रस्ट करने, मतलब प्रोफेशनल के अंडर आप ट्रस्ट फॉर्म करते हो, तो वो ट्रस्ट होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। और
बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी ने विल लिख के रखा है और बाकी के लोगों ने वो विल को चैलेंज किया कोर्ट ऑफ लॉ में और फिर बहुत मुश्किलें हुई। तो ये सब चीजें ट्रस्ट में नहीं होती हैं, क्योंकि उसको कोई लीगली जो है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। एनी पर्सन हु क्रिएट्स अ ट्रस्ट कैन अपॉइंट अ इनिशियल ट्रस्टीज। आप खुद भी ट्रस्टी शुरुआत में आप खुद भी रह सकते हो, जिसे सेटलर कहते हैं। सेटलर मतलब अभी फिलहाल आप पेरेंट ट्रस्टी रह सकते हो, और फिर बाद में कौन ट्रस्टी रह सकता है वो आप अपने मर्जी से अपॉइंट कर सकते हो। ये हमें क्यों करना है? क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे, आज हम ट्रस्ट नहीं बनाएंगे, आज हम गार्डियन नहीं अपॉइंट करेंगे, तो हमारे बाद कल को कोर्ट ऑफ लॉ को ये करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है, और फिर जब कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपको पता है कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, और उस टाइम पे हमारे बच्चों को कौन देखेगा। तो द सिचुएशन विल बी वेरी हॉरिबल एट दैट टाइम। सो ये शायद इमोशनल होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिसीजन होगा, लेकिन हाँ, आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको ट्रस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि आपको कहाँ पे आपको ट्रस्ट बनाना है, कौन कौन ट्रस्टीज होंगे। उसके बाद में जो है कि आपको कितने फंड्स उनके पास रखने पड़ेंगे। ट्रस्ट में कुछ ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं कि कल को अगर आपको भी कोई किसी तरीके की तकलीफ हो, कोई डिसेबिलिटी हो, तो आपको भी मैनेज करना ट्रस्ट का काम हो सकता है। वो भी प्रोविजन आप कर सकते हो। जब आप एस्टिमेट कर दोगे फंड्स को और एलोकेट कर दोगे फंड्स को ट्रस्ट के नाम से, उसके बाद में आपको एक ट्रस्ट डीड बनाना होता है और उसको रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो ट्रस्ट डीड में लिखा है उसी के अनुसार आपका जो फ्यूचर आपने प्लान किया हुआ है उस पे ऊपर एक्शन लेना ट्रस्ट का काम होता है। क्योंकि वैसे ही जैसे आपने चीजें सोची थी वैसे ही चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखना ट्रस्ट का काम होता है। तो आपको ट्रस्ट को डीड जो है उसको रजिस्टर करना है। नेक्स्ट है, आप जब ट्रस्ट डीड में क्या क्या लिखोगे, तो वो है राइट्स एंड ड्यूटीज एंड पावर ऑफ ट्रस्टीज, देन मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, हाउ टू डू इट और नॉट, देन डूज एंड डोंट्स, क्या क्या करना है। आप सब कुछ लिख सकते हो कि आपके बच्चे के साथ में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, उसके फंड्स कैसे मैनेज होंगे, उसकी ज़रूरतें क्या है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब कुछ आप लिख सकते हो। और आपको जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना है अपार्ट फ्रॉम योर स्पेशल नीड चाइल्ड, जिसके लिए भी आपको बेनिफिशियरी बनाना है, आप ट्रस्ट के अंडर उसके नाम लिखवा सकते हो कि इनको मुझे इतना पैसा देना है। और फाइनली जब बाइंडिंग अप ऑफ ट्रस्ट होगा, जब आफ्टर द लाइफ ऑफ आवर स्पेशल नीड चाइल्ड द ट्रस्ट गेट्स डिसॉल्व, तो उसके बाद में क्या होगा कि वो जो प्रॉपर्टी रहेगी, वो जो असेट्स होंगे, वो किस किस के नाम पे चले जाएंगे, उसका भी सारा प्रोविजन आप करके रख सकते हो। सो इट्स अ काइंड ऑफ फ्यूचरिस्टिक अरेंजमेंट दैट वी कैन डू फॉर आवर किड्स। आपको अभी लगेगा कि बहुत लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन अगर आप आज से शुरू करोगे करना, तो आपको धीरे धीरे करके जो मॉनिटरिंग करना है, जो आपको एकोमोडेशन करने हैं, चेंजेस करने हैं, तो वो आप कर सकते हो। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली हियर ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट होगा, मैं अभी डिटेल्स नहीं बता रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मेरे पास सारे डिटेल्स हैं, मैं आपको ये भेज दूंगी डॉक्यूमेंट, ताकि आप इसको एज अ गाइड आप यूज कर पाओ। ऑब्वियसली इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है कि हमें उसको फिल्टर आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके लिए हाईलाइट किए हुए हैं, तो यू कैन यूज इट। आई विल गिव यू द राइट अप ऑल्सो so that it will be helpful to you. The next and last and the most important point, appointment of the guardian. तो जो लास्ट है कि गार्डियनशिप लेना ज़रूरी है। अगर आप लीगल टर्म्स में कहना चाहूँ तो हमारे बच्चों के लिए 18 ईयर्स तक हम ही गार्डियन हैं, हम ही पेरेंट्स, हम सब कुछ है उनके लिए। लेकिन जब वो 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो जो डिसेबिलिटी के अंडर वो आते हैं, तो उसमें उनको जो भी फिनेंशियल डिसीजंस है या फिर उनके पर्सनल डिसीजंस है, उसको हमें लेने की कोई अनुमति नहीं होती, नो परमिशन एट ऑल।
हमें अगर उनके लिए कोई भी डिसीजन लेना है तो हमें उनके लिए लीगल गार्डियनशिप लेना ज़रूरी होता है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट है जो स्पेशल नीड पर्सन्स के लिए है स्पेसिफिकली, और जब हमारे बच्चे 18 ईयर्स के हो जाते हैं तब हमें गार्डियनशिप लेनी मैंडेटरी ही है, समझ लीजिए कि ज़रूरी ही है। तभी हम जाके उनके, जो मैंने अभी कहा था कि बैंक अकाउंट्स ओपन करने हैं, उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट्स हमने करने हैं, तो हम जो भी टैक्स के लिए भी करना चाहते हैं और उनके फ्यूचर के लिए, दोनों चीज़ें, हम टैक्स भी उससे बचा सकते हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि टैक्स ये हमारे इनकम से जाने वाला है, हमारे हार्ड एंड मनी से जाने वाला है, तो हम टैक्स बचा सकते हैं, साथ साथ हम उनके फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। उनके नाम पे जो हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं कल को जाके उन्हें ही उसका फायदा होने वाला है। और इन सब चीज़ों को अगर मैनेज करना है तो आपको गार्डियनशिप लेना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नेशनल ट्रस्ट के अंदर आपको गार्डियनशिप लेनी होती है। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, आपको ये कोर्ट से ही मिलता है, और उसकी जो प्रोसीजर है नेशनल ट्रस्ट के वेबसाइट पे भी दी हुई है और मैं भी दे दूंगी। उसके बाद में दूसरी गार्डियनशिप जो होती है वो होती है टेस्टामेंटरी। टेस्टामेंटरी मतलब आपने विल बना के रखा है और आपने विल के अंडर लिखा हुआ है कि कौन गार्डियन होने वाला है, और आपने कोई ट्रस्ट फाउंड किया हुआ है, उसमें भी सारे अपने डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो इट अप्लाइज एट ऑल एजेस ऑफ, मतलब आप आज से भी गार्डियनशिप आप दे सकते हो, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं। जैसे नेशनल ट्रस्ट के अंडर 18 ईयर्स के बाद मैंडेटरी होता है गार्डियनशिप लेना, आप विल के थ्रू आज भी कर सकते हो, मतलब आपका बच्चा कोई भी एज का हो आप गार्डियनशिप ले सकते हो या किसी और को अपॉइंट कर सकते हो। नेक्स्ट गार्डियनशिप होता है इंडियन कोर्ट के थ्रू। जब आप अपने लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो तो आपके बाद इंडियन कोर्ट को यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ता है, और गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंडर फिर गार्डियनशिप किसको देनी है ये सारी चीज़ें कोर्ट डिसाइड करता है, और वो बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि जो आपने अपने बच्चे के लिए सोचा था शायद वो कोर्ट को आप नहीं बता पाओगे, और कोर्ट अपने लिए जो डिसीजन, मतलब अपने तरीके से जो डिसीजन लेगा शायद वो हमें एक्सेप्टेबल भी ना होगा, लेकिन तब आवाज़ उठाने के लिए हम नहीं होंगे। तो इंडियन कोर्ट से जो गार्डियनशिप मिलती है वो लॉफुल होती है, लेकिन वो कोर्ट के अनुसार होती है। एंड लास्ट है ट्रस्ट सेटअप, जो लीगली वैलिड है, और जो हमने अभी कहा था कि स्पेशल नीड ट्रस्ट आप जो फॉर्म करोगे उसके अंडर भी, मतलब आप गार्डियनशिप होना मैंडेटरी है, आप ट्रस्ट बनाओ या ना बनाओ लेकिन गार्डियन होना जरूरी है, क्योंकि गार्डियन के पास ही सारे राइट्स होते हैं। बच्चे, मतलब जो अपना स्पेशल नीड बच्चा होगा या फिर और भी हमारे जो बच्चे होंगे अगर वो माइनर होंगी, तो उस टाइम पे उनके लिए जो भी डिसीजन लेना है, उनके लिए अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करनी है तो वो गार्डियन ही कर सकता है, हमारे बच्चे नहीं कर सकते। तो इसलिए गार्डियन का होना हर हाल में जरूरत है, आप ट्रस्ट बनाओ ना बनाओ। तो these are the most important points I wanted to highlight in this whole presentation. Obviously ये बहुत कम टाइम है जहाँ पे जिसमें मैंने आपको कहने की कोशिश की कि क्या क्या करना पड़ेगा। द लिस्ट इज लाइक नेवर एंडिंग, बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन हाँ अगर आपने ये लाइन पे सोचना आज शुरू किया तो आप मैक्सिमम अचीव कर पाओगे, आप इन्वेस्टमेंट्स टाइम पे कर पाओगे, आप अपने ट्रस्ट और गार्डियनशिप के लिए जो भी प्रोसेसेस है आप उस पर शुरुआत करोगे। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि लेटर ऑफ इंटेंट, अगर आपने सुना होगा, लेटर ऑफ इंटेंट होता है जिसमें आप एक पूरा गाइड होता है अपने बच्चे के लिए कि उसका हर एक चीज, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, क्या उसके लाइफ डिसलाइक्स हैं, क्या उसकी डिसेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसका फ्यूचर आप कैसे प्लान करना चाहते हो, आप उसके लिए आगे कौन सी चीज़ों के लिए आप, जैसे एम्प्लॉयमेंट है या फिर उसको वोकेशनल ट्रेनिंग है, कैसे करना चाहते हो, वो कहाँ रहेगा, उसके साथ कौन कौन रहेगा, उसका केयर टेकर कौन होगा, गार्डियन कौन होगा, आप हर एक इंफॉर्मेशन अबाउट वो, मतलब आप समझ लीजिए कि उसका गाइड है वो। अगर गार्डियन भी है तो उसके लिए भी, या ट्रस्ट है उसके लिए भी, अगर आप लेटर ऑफ इंटेंट लिखते हो तो आप समझ लो कि उनके लिए आपके बच्चे को मैनेज करना ये बहुत इजी होगा, क्योंकि आज हम अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि उनका जो फ्यूचर होगा उसके लिए हमें
प्रिपेयर रहना है, लेकिन जब हम नहीं रहेंगे तो ये कौन करेगा, हमारे बच्चों को कौन समझेगा। तो ये समझने के लिए हमारा बच्चा क्या है एग्जैक्टली और उसकी क्या क्या ज़रूरत है, इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट भी लिखना ज़रूरी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस के लिए मैंने वेबिनार रखा था, तो सिर्फ मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं। और आपके जो भी सवाल होंगे, मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में बहुत सारे सवाल दिख रहे हैं, तो इसका मैं अभी इंस्टेंट जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए बहुत बहुत सारे पॉलिसीज ऐसे हैं कि जिसका कहते हैं ना एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है। इवन द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो मैंने अभी आपको कहे, तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी पूरी तरीके से आपको सोचना है कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आप कितने रिटर्न चाहते हो, आपका कैपेबिलिटी कितना है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपको कितना कॉर्पस जमा करना है। ये इंडिविजुअलाइज डिसीजन होता है, हर एक का अपना डिसीजन होता है। तो यहाँ पे हम कोई पर्सनल जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि यस, ये जो पॉइंट है अगर आप इनको ध्यान दो तो आपके बहुत सारे जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। तो पर्सनल फाइनेंसेस के लिए आप प्रोफेशनल्स के पास जा सकते हो, लेकिन जब आपको प्रोफेशनल के पास जाना है तो आप ये अगर होमवर्क करके जाओगे, आपके पास ये सारा नॉलेज होगा, तो कोई भी प्रोफेशनल आपको फंसा नहीं पाएगा, कोई भी प्रोफेशनल आपको इस तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं बेचेगा जहां से निकलना आपके लिए मुश्किल हो। जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें लॉक इन पीरियड होता है और आप पैसे नहीं निकाल पाते हो, और ऐसे आप पैसे ना निकाल पाओगे और आपको जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, और इस टाइम पे तो आपके पास फिर कोई कोई हेल्प भी नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि जिसने आपको बताया वो तो चला गया इन्वेस्टमेंट करा के, और उसके बाद में आप क्या करोगे। तो ऑब्वियसली आपको आपके डिसीजन खुद लेने के लिए एक जो गाइडेंस चाहिए, एक जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि हम खुद जब स्पेशल नीड पेरेंट हैं तो हम इन सब चीज़ों के बारे में फिनेंशियल नॉलेज जिसको है वो ज़रूर जानकारी लेता होगा, समझता होगा, लेकिन फिनेंशियल चीज़ों में इतनी सारी इंट्रिकसीज होती है, इतने सारे टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं कि सबको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम आपको एक गाइडलाइन बताएंगे। ओके, सो फॉर नाउ आई थिंक जो भी क्वेरीज रहेंगे प्लीज आप नमिता मैम, हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रह गई थी। हाँ जब सबको वेबिनार का इनविटेशन भेजा गया था, उसी के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप का इनविटेशन भी भेजा गया था। आई थिंक मेनी पीपल हैव मिस्ड इट, so Yes. if everybody joins that WhatsApp group, it will be easy not only to respond to the queries gradually, but also Namita ma'am can share relevant links. yes. Like she said कि मैं immediately तो answer नहीं कर सकती हूँ. She can gradually over a period of time keep sharing resource material and links that are relevant to this. Yes. And the next webinar accordingly can be planned as per the need of the participants. So आप लोग प्लीज उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज ऐसे होंगे कि शायद उसके लिए जो मतलब इंस्टेंट आंसर शायद मैं अभी ना दे पाऊँ, लेकिन हाँ जरूर मैं आपको आपके क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करूंगी। और जैसे कहा कि पर्सनलाइज है सारे क्वेश्चंस और जवाब इनके, तो मैं आपको पर्सनली भी आपको रिप्लाई कर दूंगी। सो ओवर टू Thank you, Namita ma'am. Thank you very much. Thank you very much. It was an eye-opening information. Like हम लोग क्या है, हम ज़्यादातर थेरेपीज, बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या करने वाले हैं, इसी पर बात करते रहते हैं और ये सब पीछे छूट जाता है। राइट। आपने बिल्कुल सही और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, जो मेरे जैसा इंसान भी समझ पाया जिसको बिल्कुल फाइनेंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो it was simple, it was very informative and very practical information जो आपने शेयर की। Thank you so much, ma'am. Like to be very specific, I am not a like investment advisor. मैं कोई investment advisor नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं एक पिछले 11 साल से अपने बच्चे के साथ जब रह रही हूँ, तब ये सवाल जब मेरे मन में बार बार आते थे, तो बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल, बैकग्राउंड मेरा फाइनेंस का रहा है, तो मैं हमेशा इन चीज़ों को मैंने
समझना चाहा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इन प्रोसेस है, अभी भी चल रही हैं। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और हमें इसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। कहीं से ना कहीं से हमें स्टार्ट करना जरूरी है और वो स्टार्ट आज ही करना है। कुछ साल पहले हम भी ये चीजों को पोस्टपोन कर रहे थे क्योंकि मैक्सिमम जो भी एक्सपेंसेस थे बच्चों के ऊपर होते थे, तो सेविंग के लिए अमाउंट ही नहीं बचता था। ये फैक्ट है हमारे साथ, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से जब है तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड इनकम में हमें मैक्सिमम हमारे बच्चों के लिए करना है। तो सेविंग्स के लिए पैसे बचाना ये बहुत बड़ा टास्क था। लेकिन जब हमने समझना शुरू किया कि बाद में क्या होगा, कैसे होगा, तब हमने सोचा कि नहीं, अभी इट्स हाई टाइम एंड वी हैव टू टेक द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स। और ना सब सिर्फ हम खुद समझे, हम समझ के औरों को भी बताएं कि भाई आप भी समझो, आपको भी ये सब करना पड़ेगा। और मैं तो एक आपको गाइडलाइन दे सकती हूँ, एक आपको फ्रेमवर्क दे सकती हूँ, लेकिन उसके अंदर आपको जो भी करना है तो वो आपको आपके हिसाब से ही करना होगा। और प्रोफेशनल की भी हेल्प लगेगी तो भी आपको लेनी है, आपको प्रोफेशनल के पास जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जब जाओगे तो आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है तो आपको क्योंकि हम खुद शुरुआत में फंस चुके हैं लोगों, जब हमको जानकारी नहीं थी तो लोग हमको आके बताते थे और हम मान लेते थे, क्योंकि हमारे लिए ये इमोशनल डिसीजन होता है। हमको जब कोई कहता है तुमको 15 साल के बाद 30 लाख रुपए मिलेंगे, तो हमारा भी मन करता है कि हम भी जाए, हम भी ये ऐसे वाले प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये इतने ज्यादा कॉस्टली है, ये इतना ज्यादा टोल लेने वाले हैं मुझ पे हर साल, और मुझे रिटर्न बहुत ही कम मिलने वाले, जब मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ तो मुझे अगर 2 या 3% रिटर्न मिलने वाले हर साल, तो वो तो एफडी से भी कम है। तो क्या फायदा फिर ऐसे ऐसे जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट करने का। तो इससे अच्छा मैं अभी के लिए, जब मेरे पास कोई कॉर्पस नहीं है, मैं एक अर्ली एज में हूँ, मैं 30s में हूँ, मेरे पास अभी कोई भी अमाउंट नहीं है और कल को कुछ मुझे हो जाता तो मैं क्या करूंगी। तो मेरे पास टर्म इंश्योरेंस का अगर वो सिक्योरिटी होगा, अगर मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का कवर होगा, तो ऑब्वियसली मेरे पास एक हिम्मत होगी, यार कुछ भी हो जाए मेरे फैमिली को कुछ अफेक्ट नहीं होगा, है ना, एटलीस्ट उनके पास पैसे रहेंगे। तो ये वाला जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझ, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग आना और फिर उसके ऊपर एक्शन लेना। तो ऑब्वियसली सिर्फ समझ के नहीं चलेगा, हमें इसके ऊपर एक्शन लेने पड़ेंगे। और यहाँ पे कहीं पर जरूरत पड़ती है तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू हेल्प आउट। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए आपको प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी, या फिर कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है, या फिर आपको ट्रस्ट फॉर्मेशन करना है, या फिर आपको गार्डियनशिप लेनी है, तो उसके लिए जो भी लीगैलिटीज होंगे उसको आपको फॉलो थ्रू करना होगा। ओके, anyone else wants to say something? थैंक यू नमिता, काफी क्वेरीज क्लियर हो गई, काफी अच्छा था हमारा, बढ़िया। थैंक यू रितिमा। अब गार्जियनशिप तो लेनी है, प्रणब उसी के उसमें काम करना है, उसके बाद ही कुछ प्लानिंग होगी। नहीं, एक्चुअली स्पेशल नीड्स के लिए प्रोफेशनल्स है, मतलब अवेलेबल तो है मार्केट में, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन आपको और आपके बच्चे को अच्छे से समझ के आपका फायदा ना उठाते हुए आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। तो ये चीज आपको जरूर शायद आप समझ पाओगे। यस प्रणव। हाँ जी Namita ma'am, I have pasted the chat box queries on the WhatsApp group. ओके, ग्रेट। Since time was running out, Yes. you can answer those queries there, and then parents can also ask more questions. Okay, that's great. I would certainly answer the queries, and I would like to